अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे प्यारे पाकिस्तानी शहीद हो गए, यानी कि कराची और लाहौर में दो फैक्ट्रियों के अंदर आग लगना और बहुत सारे लोगों की शहादत होना, ये एक छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है। बहुत सारे लोग इस वाक़ये में लवारिस हो गए, बच्चे यतीम हो गए, कई बच्चे अपनी माएँ खो बैठे, बहनें भाई हर किस्म के रिश्ते। इस होलनाक वाक़ये में मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से तमाम शहीदों के लिए दुआगो हूँ और उनकी फैमिलियों के साथ इज़हार अफसोस करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ताला तमाम शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आप लोगों को सब्र अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर के ऊपर बनाई गई है। ये टॉपिक ऐसा है कि जो बहुत दुख देने वाला है और हमेशा से मेरी यही अप्रोच रही है कि आप नाज़रीन के सामने जो फैक्ट और सच्चाई है वो पेश करो। आज की जो वीडियो है, इसके शुरू में मैं सबसे पहले स्कॉटलैंड यार्ड से इंग्लिश में बात करूंगा और उसके बाद उर्दू के अंदर इस एपिसोड को जारी रखूंगा। I would like to request Scotland Yard not to consider my video as a provocation, or this video has not been created to mislead or misguide you or to detract you from your investigation. Basically, I have made this video just to inform the general public, since they were very curious to get the information why Dr. Imran Farooq was expelled in 2005 out of the party and why he was murdered in 2010. Basically, as you understand, Dr. Imran Farooq has been working very hard day and night from the very beginning for the creation of MQM and to make it a well-organized party. But how it could be possible for a leader to be expelled or being murdered? Till the time some people, whosoever may be, have some interest to kill him. In this regard, I am going to make this video as a first part. It carries just general information, since I understand the sensitivity of the case. I am not going to disclose any confidential or restricted information which could be good for you but not good for the criminals. If I have to disclose, I will disclose the information to the Scotland Yard straight away, and I can assure Scotland Yard my cooperation will remain till the end of this case. We all have to stand against all sort of criminality and to bring the criminals before the justice. The victimized family
is going through a lot of pains, agony, since 2 years has passed and nothing has happened. But I understand that this case is not easy. It is a very difficult case. I understand the capability of Scotland Yard. I never underestimate. I rather appreciate whatsoever the investigations they have done, and still they are doing their investigation. I have made some slides, plus I am using some video clips for the public, for their thinking, so that they must think at their own to carry out their individual research and to find who could be the criminal, who could be the beneficiary. But this video will be majority in Urdu, since I have my viewers who understand Urdu better than English. I will request Scotland Yard that in case they want to use this video as an evidence, they are most welcome. I will not be having any objection. I assure you that nothing confidential or restricted or even the secret information will be disclosed through this video. Whatsoever the leading information, if I will be getting, I will definitely convey you. This video has been created by getting information through my reliable sources inside the MQM. As you understand, MQM is being ruled by those people who are not sincere to the cause that made this MQM. And the people who are working for the cause, they are in danger. They might be killed at any time. Thus, I would like to request Scotland Yard to work as fast as possible, so that the people who could help us to find the real criminal, of course we understand the people who were behind this plan, but we don't know who were the people on ground to kill Dr. Imran Farooq. So if we will work very fast, we might save many lives. Right now, I am going to start my same episode in Urdu. Thank you very much, Scotland Yard. I do appreciate, and we will keep the contact. मोहम्मद अनवर एक इंडियन रॉ का एजेंट पार्टी के अंदर काम करता है। अल्ताफ सैन को भी वो चलाता है। उसके अपने एक मकासद हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट करना और अल्ताफ सैन को पुश करना कि वो सियासी बयानात दे। अब सोचिए कि कुवैत और इराक की लड़ाई में मुत्तहदा का क्या काम है, कैसे वो उनकी मदद कर सकते थे। और मोहम्मद अनवर कुवैत की एम्बेसी में गए और अपनी मदद ऑफर की, यानी कि मुत्तहदा की मदद। इजराइल विजिट किया, क्यों किया, उसकी क्या वजूहात है, क्या मकासद है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान गवर्नमेंट का इजराइल के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं। इंडियन रॉ का मोसाद के साथ राब्ता है। तो मोहम्मद अनवर इजराइल क्यों गए, ये एक सोचने की बात है। डॉक्टर इमरान फारूक ने इसकी बहुत मुखालफत की, झगड़ा हुआ, काफी तूल पकड़ गया, जिस पे डॉक्टर इमरान फारूक को लंदन सेक्रेटेरिएट से बाहर निकाल दिया गया। इसी वजह से उनको ऑफर की गई
कि आप अपने घर में बैठ जाए, आपको वहीं बैठे तनख्वाह दे दी जाएगी, लेकिन आप सेक्रेटरीट ना आए, क्योंकि मोहम्मद अनवर को खतरा यही था कि ये हमारे कामों में इंटरफेयर करता है। तो डेफिनेटली बैकिंग किसकी थी? अल्ताफ हुसैन की। अगर अल्ताफ हुसैन में थोड़ी सी सिंसेरिटी होती तो डॉक्टर साहब को अपने पास रखते, लेकिन अल्ताफ हुसैन तो खुद एक मोहरा बन के दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है और झूठे आंसू बहाता है। अब आपको एक मैं वीडियो दिखाता हूं, उसको गौर से सुनिएगा भी, देखिएगा भी और सोचिएगा भी। एक इंसान की डेथ पर जब अफसोस होता है तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि ये अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, इस तरह की चीजें। 16 सितंबर को जब डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर हुआ, मोहम्मद अनवर अल्ताफ हुसैन के कंधों पर खड़े हैं, सवार हैं और उनको हौसला कैसे देते हैं। उनको कैसे पता था ये कॉन्स्पिरेसी है? उनको कैसे पता था कि कोई मुसीबत अल्ताफ हुसैन के ऊपर आ सकती है? और अल्ताफ हुसैन के चेहरे को गौर से देखिएगा, शायद देखिएगा कि क्या उनकी आंखों में आंसू था या एक ड्रामा था, एक खामखा का एक वो ड्रामा जो कि हमारा पाकिस्तान का मीडिया बड़े शौक से, जोर से दिखलाता है। क्यों उनको कोई और रियल गमज़दा फैमिली में से कोई नहीं मिला था? अल्ताफ से नहीं मिला था, जिसने 2005 में डॉक्टर साहब को घर से क्या सेक्रेटरीट से भी निकाल दिया, पार्टी से भी निकाल दिया। किस चीज का काम था उसको? अगर उसको काम था तो डॉक्टर साहब को साथ रखता, उनकी कदर करता, क्योंकि डॉक्टर साहब ने काम किया, लेकिन ये नहीं हुआ। देखिए अब जरा वो वीडियो। आपने देखा है कि थ्रू आउट ऑपरेशन एंड यू गोइंग टू डिफीट वंस अगेन द कॉन्स्पिरेसीज, द इविल फोर्सेस, यू विल डिफीट देम। आई एम श्योर। नाज़रीन, जब किसी का प्यारा दोस्त, भाई, कोई भी रिश्तेदार दुनिया से रुखसत होता है तो दुनियादारी के अंदर रहते हुए लोग अफसोस करने के लिए उनके घरों में जाते हैं और स्टार्ट में क्या फिक्रे बोले जाते हैं, यही ना, अफसोस हुआ, दुख हुआ, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और जो रुखसत होने वाले रूह है अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अब ये वीडियो उसी दिन 16 सितंबर जिस दिन डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर हुआ, इमीडिएटली ये वीडियो बनी थी और शायद उस वक्त तक स्कॉटलैंड यार्ड ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं की थी। मोहम्मद अनवर जो अल्ताफ हुसैन के कंधों के साथ खड़े हैं और वो क्या डायलॉग बोल रहे हैं कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ तो पहले भी आप बड़ा स्टैंड लेते रहे हैं, पूरी दुनिया से टक्कर ली है, दुनिया आपको कुछ नहीं बिगाड़ सके। 92 के ऑपरेशन की भी बात हो रही है, अब बात है डेथ की, और वहां पे वो बातें कहां से चल पड़ी? इसका क्या मीनिंग्स थी? क्या ये मीनिंग्स तो नहीं थी कि जैसे आप पहले जो कुछ करते रहे आपका कुछ नहीं बिगड़ सका, तो इस मामले में भी फिक्र ना कीजिए, आपको कुछ नहीं होने लगा। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि अल्ताफ हुसैन एक ड्रामाबाजी में रो रहा था। अगर गौर कीजिए उसके रुखसार के ऊपर भी वो आंसू भी नहीं है। क्यों? उसकी वजूहात क्या है? ये बातें तो चलती रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें भी बताऊंगा कि जो आपके रोंगटे खड़े कर हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो लंबी भी हो जाएगी। वो कुछ जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं अपने सेकंड एपिसोड में कहूंगा। आज के एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूं इस वीडियो क्लिप के साथ, जिसमें हमारी बहन शमाइला इमरान, मिसेस डॉक्टर इमरान फारूक लोगों से
क्या अपील कर रही है थ्रू स्कॉटलैंड यार्ड. With the permission of Scotland Yard, I am going to use this portion of your video of the press conference. This is a reproduction because it is still on the YouTube, so that the people might come out to help us to find the real criminals. नाज़रीन, ये वीडियो देखिए कि हमारी बहन किस अंदाज में रो रही है. लेकिन क्या आज भी अल्ताफ हुसैन का गम ताज़ा है? क्या आज भी अल्ताफ हुसैन उस बहन को या उनके बच्चों को सरपरस्ती देने के लिए तैयार है, या मुतहदा को कोई बंदा उनके पास गया है? इस वीडियो के एंड पे एक पिक्चर जरूर मुलाजा कीजिएगा कि अल्ताफ हुसैन जब उनके डॉक्टर इमरान फारूक के घर गए अफसोस करने के लिए, तो चेहरा देखिए हमारी बहन का और उस बच्चे का हाल देखिएगा कि वो डर के मारे एक साइड पे हो गया. तो आज का एपिसोड पार्ट 1 डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर का मैं ख़त्म करता हूँ, और जल्द आपको पार्ट 2 जिसके अंदर बहुत सारी स्टनिंग फैक्ट्स सामने आएंगे. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज. Today I want to make my own personal appeal for help in catching the people who killed my husband, Dr. Imran Farooq. Dr. Imran Farooq was a dedicated family man, a loving father and loving husband. His murder a week ago has devastated me and left our family in a state of shock and disbelief. My husband was on his way home from work when he was set upon and attacked. I want to appeal today for anyone who has any information about the attack on Imran to come forward and tell the police what they know. Somewhere knows something about my husband's murder. It does not matter how insignificant this information may seem to you. It could be absolutely vital to the police investigation. I would like to thank everyone who has supported me and my family and send us their best wishes and condolences. I would also like to thank the police for their help and support during this very difficult time. Thank you for coming today.